So in today's class, I am going to introduce a new concept of determinants. It's our NCRT chapter number 4. It is related to a given square matrix. Consider the system of the following equations. Two equations in two variables. A1x plus b1y is equal to c1 and a2x plus b2y is equal to c2. Recall that we already learned in previous class that the given system of equation has a unique solution if a1 by a2 is not equal to b1 by b2. They are nothing but the coefficients of the corresponding given equations. If we cross multiply, we have the following equation. So the number which is occurred in the LHS a1 b2 minus a2 b1, this determines the uniqueness of the solution which is associated with the matrix A1 B1 A2 B2. That is specifically known as the determinant of the matrix A. So basically for every square matrix there exists a unique scalar numerical value associated with that, which is known as the determinant of A. So if A is ABCD, that is our 2 by 2 matrix at the bottom, then the determinant of A written as, this is the notation, this is not a modulus, notation similar है, but इसको read out क्या करेंगे, determinant, and this may also be written as det of bracket में A लिख दिया. So determinant of A is denoted by this, and as already mentioned, this is equal to AD minus BC. ये AD कहाँ से आया, डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करा और माइनस कर दिया ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट. So these are the things already mentioned. If we are given with a matrix of order 1, means simply one row, one column, then of course if the matrix is singleton element like this, so its determinant is the same value. And for 2 by 2 matrix, we already have discussed this. So if A is this 2 by 2 matrix, then its determinant is denoted by this, and sometimes we write this by delta as well. और ये क्या हो गया, check this out, A11 into A22 करा, डायगोनल एलिमेंट मल्टीप्लाई करे, माइनस कर दिया ऑफ डायगोनल वाला प्रोडक्ट like this. So consider few solved examples, check it out. डिटर्मिनेंट निकालना है आपको इस A का. So it's simply 15 minus 6. Find out the determinant of this. Check it out. What's the answer? So पहले डायगोनल एलिमेंट 7. मल्टीप्लाई, यस, फिर माइनस कर दिया इन दोनों का प्रोडक्ट. सो माइनस माइनस प्लस हो गया था 7. Similarly, check out this C. Just open the bracket and that was your required answer. No like term is there, तो यही आंसर हो गया था. ये another matrix one can easily find. Cos square theta minus sin square theta. आप इसे
cos 2 थीटा भी लिख सकते हैं फाइनल आंसर को। अब मेन हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स अगर मेरे पास है, then we are going to make use of a second order determinant to find that third order, and expansion जो है वो हम करते हैं either along the row or the column। और हमें पता है इन अ मैट्रिक्स ये 3/3 में there are 3 rows and 3 columns, so in fact there are 6 different methods via 3 rows and 3 columns. So using 6 different methods, we can find the, or we can expand the determinant, but all the methods will give us the same answer, obviously, because the determinant of a square matrix is unique. तो चेक करिए स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व होंगे किसी भी एक 3/3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। बहुत ध्यान से देखिएगा। सो हम अलोंग फर्स्ट रो एक्सपैंड कर रहे हैं, तो 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे। स्टेप 1 देखिए क्या है। हमने फोकस करा फर्स्ट रो के ऊपर, इसके अलोंग मैं इसे एक्सपैंड करना बता रहा हूं। सो I'll explain that theory in a simple word. आप चेक करिए फर्स्ट एलिमेंट जो ये वाला है A11, इसे किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। आप कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को इमेजिन करो कि आपने हाइड कर दिया। इस एलिमेंट A11 के रो और कॉलम को हाइड कर दिया। जो बच गया माने जो ये 2/2 दिख रहा है, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। बट ये वैल्यू मल्टीप्लाई होगी इस नंबर से। ये नंबर क्या है बेसिकली A11 लिखा हुआ है यहाँ पर, तो A11 में ये I है ये J है, तो दिस इज I दिस इज J। तो -1 की पावर इनका सम कर दिया। दिस इज ऑफ कोर्स -1 का होल स्क्वायर, तो ये तो एक 1 आ गया सिंपली। इसीलिए जो भी यहाँ वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा उसके साथ प्लस का साइन आ रहा है। सो दिस इज द वैल्यू जो अभी हमारे पास स्टेप 1 में आई है डिटर्मिनेंट को निकालने के लिए। सो -1 की पावर I प्लस J कर दिया, फिर इनटू कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इनटू दी बचा हुआ जो आपका 2/2 का डिटर्मिनेंट रहा था। स्टेप 2 में क्या करेंगे। सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दो ये। मैं आपको ना ये वाला बताता हूँ स्टेप 2, क्योंकि वो बिल्कुल सिमिलर है, स्टेप 3 बिल्कुल सिमिलर है, तब उससे समझ आ जाएगा। एक बार ना स्टेप 2 को देखो। रो 1 के अलोंग एक्सपैंड कर रहे थे, A11 को मैंने स्टेप 1 में यूज किया था। अब A12 पे फोकस करिए, और A12 में क्या हुआ, कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड कर दो। इससे समझो जो मैं ये दिखा रहा हूं, ऐसे ऑरेंज कलर की लाइंस आ रही हैं, आपने इसको छुपा दिया। A12 के कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड कर दिया। बच क्या गया, अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर ये 4 एलिमेंट बच जाएंगे इस ऑर्डर में, A21, A23, A31, A33, और इसका सबस्क्रिप्ट जो ये था 1 2, इनका सम क्या है 3, विच इज ऑड। तो -1 की पावर ऑड जो है वो माइनस दे देगा। इसीलिए स्टेप 2 में आपके पास क्या वैल्यू आएगी, -1, दिस इज -1 इंटू यही वाला एलिमेंट A12 जो मैंने बताया, इंटू बचा हुआ डिटर्मिनेंट, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड कर दिया था।
जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स, कंप्लीट इजीली क्लियर हो जाएगा। स्टेप 3 में क्या करेंगे, फाइनल स्टेप है ये, फोकस ऑन A13, क्योंकि हम रो 1 के अलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं। कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड कर दिया, और अब A13 था, 1 + 3 4 है, इनका सम 4 आ गया, तो इसीलिए ये वैल्यू तो सिंपली 1 ही रहेगी। तो आपने 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना था, ये वाला एलिमेंट A13 इंटू जो बच गया उसका 2/2 डिटर्मिनेंट। और अब जो 3 स्टेप्स में हमारे पास तीनों न्यूमेरिकल वैल्यू आई होंगी, आप उन तीनों वैल्यूज को ऐड कर देंगे। तो ये मेरी स्टेप 1 की वैल्यू थी, ये स्टेप 2 की, ये स्टेप 3 की। Add all the 3 values, you will get the corresponding determinant of a 3/3 matrix. Consider this simple rule. For the easier calculation, we shall expand the determinant along that row or column which contains maximum number of zeros. So इससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। और मल्टीप्लाई आपको किस फैक्टर से करना है, वो सिंपली +1 या -1 है, वो आप सिंपली इस टेबल से, इससे चेक कर लीजिए। नॉर्मली हम फर्स्ट रो से ही एक्सपेंड करने वाले हैं, कन्वेंशनली हम यही करते हैं फर्स्ट रो से। तो फर्स्ट रो में क्या आपको माइंड में रखना है, ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस प्लस। सिमिलरली मान लो मैं एक्सपेंड करता हूं किसी केस में सेकंड कॉलम के अलाउंग, दिस इज माय सेकंड कॉलम, तब सेकंड कॉलम में आपको माइंड में क्या रखना है, माइनस प्लस माइनस। इसका रोल क्या है, चेक दिस आउट। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल, आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो फर्स्ट रो के अलोंग देखो कैसे मैंने बताया था एक्सपेंड करेंगे। एक तो माइंड में क्या रखा हुआ है, प्लस माइनस प्लस, ये तो प्लस, फिर ये 1 आ गया ये वाला, इनटू इसको हाइड करके जो बच गया था वो सिर्फ यहाँ एज अ डिटर्मिनेंट लिख देंगे। और 2/2 डिटर्मिनेंट हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कैसे निकालना है। नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, सेकेंड एलिमेंट पे फोकस किया, बट यहां साइन क्या लगाना था, माइनस, क्योंकि हिडन में था ना ये प्लस माइनस प्लस, तो माइनस ऑफ 2 हो गया, माइनस ऑफ 2 हो गया, इनटू इस रो और कॉलम को हाइड कर दिया ब्लू वाले को, और जो बच गया वो लिख दिया उसका डिटर्मिनेंट। और फाइनली क्या करेंगे, प्लस, अब फोकस करा थर्ड एलिमेंट पे, यहां प्लस ही था तो +4 आ गया, इनटू ब्लैक वाला जो मैंने दिखाया है उसको रो और कॉलम को हाइड करा, बचा हुआ 2/2 डिटर्मिनेंट आ जाएगा। 2/2 डिटर्मिनेंट हम निकालना सीख चुके हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कैसे, दिस इनटू दिस माइनस दिस प्रोडक्ट कर देंगे। सिमिलरली यहां आ गया दिस इनटू दिस, -1 इंटू -2 वो 2 हो गया, एंड माइनस क्या करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट, 6 इंटू 3 18। तो वो अब आप मेंटल मैथ्स कैलकुलेशन में कर सकते हैं, नो नीड टू राइट एवरी स्टेप। इवन वंस यू हैव अ गुड प्रैक्टिस, पहला स्टेप ऑप्शनल है लिखना, आप डायरेक्ट ये लिखना शुरू कर देते हैं, वो 1-2 क्वेश्चंस के बाद क्लियर हो जाएगा।
usual calculations to follow, and this gives me the determinant of this A. ओके चलिए ठीक है, आंसर भी आ गया है। ठीक है भानु, now based on this we have our NCERT exercise 4.1। सिर्फ एक डिटर्मिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं उसकी बात करी गई है। तो मे आई हैव द आंसर टू दिस क्वेश्चन? सोचिए जरा, स्टार्ट कीजिए। एनीवन, व्हाट इज द आंसर? ओके भानु, समृद्धि 18। ओके व्योम, लेट्स चेक इट आउट। सिंपली कॉरस्पॉन्डिंग डायगोनल एलिमेंट्स मल्टीप्लाई और माइनस कर दिया ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई, योर आंसर। चेक दिस आउट, दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, मेंटल मैथ्स में हो जाएगा। 1 परफेक्ट। check this out, normal multiplication। सर एक बार पिछला दोबारा दिखाना। check this out, ये करना है आपको। तो क्या करते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करा तो cos थीटा इंटू cos थीटा हो गया, और फिर माइनस क्या करते हैं, बीच में तो माइनस ही आता है, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ये आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड फाइनली cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा विच इज 1। check out this, यूजुअल मेथड। अब हम बता चुके हैं कि क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग इन दोनों को मल्टीप्लाई करा और माइनस कर दो इन दोनों का प्रोडक्ट। ओपन द ब्रैकेट, कंबाइन लाइक टर्म्स एंड सिंप्लीफाई, you have your required answer। A आपको गिवन है, you are to show this result। so basically सबसे पहली बात, आपने 2a को लिख लिया, LHS चाहिए मुझे, तो LHS में 2a इन्वॉल्व है, तो a 2a हमें लिखना आता ही है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल दिया, ये आपके सामने ही है कैलकुलेशन, तो ये मेरा LHS आ गया। RHS के लिए सिंपली डिटर्मिनेंट a निकाला, -6 आ गया, और उसे हमने 4 से मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, which is nothing but my RHS, which verifies the result। check this out, सबसे पहले अब देखो, यहां हमने ऑब्जर्व करा कि यहां और यहां जीरोस है, ठीक है। तो एक रूल बताया था कि जहां ज्यादा जीरो हो आप वहां के अलोंग एक्सपैंड कर दीजिए। तो इंस्टेड ऑफ रो 1
we can expand this using column 1 as well. कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है, बाकी वही आपकी चॉइस है, आप रो 1 से कंफर्टेबल हैं, डू यूजिंग दैट ओनली. तो चेक दिस आउट, ये डिटर्मिनेंट ए निकाला. प्लीज इंश्योर ये स्टेप आपको क्लियर है डिटर्मिनेंट ए निकालने का. यहां मैंने कॉलम 1 के अलोंग करा है, तो प्लस माइनस प्लस, ये माइंड में रखा हुआ है. चाहे माइनस 0 इंटू एनीथिंग, ये 0 हो गया, फिर प्लस 0 इंटू एनीथिंग, ये तो 0 ही होना था. इसीलिए प्रेफर करा था कि हम कॉलम 1 के अलोंग एक्सपैंड कर दें. तो इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है भानु, 4 आ गया है. अच्छा, ये बाद में आना था. फिर ए देखिए, 3a लिख लिया. ये चाहिए ना मुझे 3a का डिटर्मिनेंट, तो 3a लिख लिया, पूरे एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई कर दिए. अब इसका डिटर्मिनेंट निकाला यूजुअल मेथड से. चेक दिस आउट, वो 108 आ गया. तो इन्होंने यहाँ क्या करा है, ये चीज मेरी एक्चुअल में क्या आ रही है, RHS. ये RHS आ गया था, और ये आ गया है मेरा LHS. ये 3 अंदर लिखा जाएगा इसके ना, थोड़ा सा लिखने में गलती हुई है. दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड. सो दैट LHS और RHS इक्वल आ गए. इनफैक्ट इफ यू नोट केयरफुली, मैं एक रिजल्ट बता देता हूं. K इंटू ए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और K यानी न्यूमेरिकल वैल्यू है. सो दिस इज गिवन बाय K की पावर n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, वेयर n क्या है, n is the order of the given square matrix. So learn this as a standard rule. Please make a note of it. Very important formula. चलिए, अब डायरेक्ट क्वेश्चन है. प्रेफरेबली कॉलम 2 के अलोंग हमें एक्सपैंड करना चाहिए, बाकी आपकी चॉइस है. आई एम वेटिंग. व्हाट इज द आंसर? एवरीवन प्लीज ट्राई इट आउट. एंडिंग अलोंग दी सेकेंड रो प्रेफर करना है, क्योंकि उसमें मुझे मैक्सिमम जीरोस दिख रहे हैं. तो एक्सपैंड किया. सेकेंड रो है, तो याद रखिए यहाँ पर क्या साइन कन्वेंशन था, माइनस प्लस माइनस. ये हिडन है, ये आपको अपने आप सोचना था. माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस 0, वो एक ही बात है. फिर प्लस 0, और फिर यहाँ साइन बदल गया, तो माइनस कर दिया था. सिंप्लीफाई, you have your answer. चलिए, इसका आंसर बताइए. and I am expecting more students to give response. बाकी भी करिए इसे.
अब आपकी चॉइस है, क्योंकि जीरोस तो नहीं है तो आप किसी भी रो के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हैं। तो लेट अस प्रेफर फर्स्ट रो ओनली। चेक दिस आउट। 46 या 9, 46। ओके चलो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग ओके 46। लेट्स चेक आउट दिस कैलकुलेशन। Yes, the answer is 46. Check this out. अब यहाँ डायगोनल में जीरो है, तो इसीलिए अब आपकी चॉइस है, आप किसी भी रो और कॉलम के अलोंग एक्सपैंड कर सकते हैं। तो फिर यूजुअल मेथड कन्वेंशनल फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपैंड करके देखिए। आई एम वेटिंग। ओके, लविश इज सेइंग जीरो। चलिए बाकी भी देखिए जरा। भानु has got some different answer, -12, -12। प्रकृति ओके, चेक कर लेते हैं। ये आएगा आपका रो वन के अलोंग एक्सपैंड करके फर्स्ट लाइन। So the answer is actually zero. Yes, Bhanu, that's a good observation. The given matrix अगर आप corresponding ध्यान से देखें तो वो skew symmetric given थी। जैसे ये जीरो जीरोस हैं, और याद करिए skew symmetric में क्या होता था, इन दोनों के साइन चेंज होंगे, अपोजिट वाले इन दोनों के साइन अलग होंगे और इनके साइन अलग होंगे। तो इससे ये जस्टिफाई हो गया कि दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। In fact, there is a result if you are given with a odd order skew symmetric matrix, its determinant will be always equal to zero. So that can be regarded as a standard rule. तो ऑड ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। हम सिलेबस में डिटर्मिनेंट सिर्फ 3/3 तक कर रहे हैं, जबकि 4/4 हो, 5/5 हो, so that determinants can also be found, but they are very very calculative। तो उस समय हम सॉफ्टवेयर्स की हेल्प लेते हैं, वो यूनिवर्सिटी लेवल पे स्टडी होता है। चलिए एक और प्रैक्टिस के लिए थोड़ा मैंने इनको इंक्लूड किया है। व्हाट इज द आंसर? प्लीज एवरीवन ट्राई इट आउट, बिकॉज दिस इज द बेसिक थिंग। 3/3 का डिटर्मिनेंट तो सही निकालना आना चाहिए। फोकस मेरा आज की क्लास में मेनली उसी पर है। ओके, लेट्स वेट फॉर अ फ्यू मोर आंसर्स। वन आंसर इज 5। लेट्स सी, इज इट करेक्ट? ओके, अनन्या इज आल्सो सेइंग 5। बाकी भी देखिए, आई एम वेटिंग।
अब क्योंकि मुझे 0 दिखाई दिया कॉलम 1 में, तो मैंने कॉलम 1 के अलावा एक्सपैंड कर दिया है। चॉइस आपकी थी। इफ यू आर जनरली कंफर्टेबल विद रो 1, आप वही कर सकते थे। So the answer is yes, Bhanu Lavish, yes, it's 5. तो आप कैसे भी एक्सपैंड करें, हो सकता है आपने रो 1 के अलोंग सोचा हो, but ultimately answer will be the same. Check out this question. Find x if the following determinants are equal. चेक करिए, ये मैट्रिक्स नहीं है, तो एलिमेंट को एलिमेंट से इक्वेट नहीं करेंगे, राइट? तो आपको एक्सपैंड करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट्स को बोथ द साइड्स। यूजुअल मेथड है 2 by 2 का। तो your required answer plus minus √2. Perfect. What's the answer? MCQ है ये, check it out. Option B. Okay. Do not compare the elements directly. एलिमेंट्स को अगर आप डायरेक्ट कंपेयर करेंगे तो देखने से सीधा लग रहा है कि x की वैल्यू 6 आ रही है, but you need to expand and simplify. So plus minus 6, right? ठीक है भूमिका, अनन्या, yes. Okay, now it is your turn. 2-3 क्वेश्चंस और अलग तरह के लिए हैं. If x is a real number lying between 0 से pi by 2 and these two determinants are equal, find x. Check it out. Determinants. तो ये कितना हो जाएगा, 2 sin square x and then माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, और RHS में डिटर्मिनेंट सिंपली 3 sin x आ रहा है. So the idea is just rearrange and observe that you have a quadratic equation in sin x. तो अब आप splitting the middle term कर दो या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दो, वो आपकी चॉइस है. तो चेक करिए, स्प्लिटिंग कर लेते हैं. आई एम श्योर दिस इज क्लियर. फर्स्ट 2 कंबाइन करें, लास्ट 2 कंबाइन करें. 2 sin x कॉमन, फिर माइनस 1 कॉमन, which gives us sin x as half और 1. इसे 0 रखा, इसे 0 रखा. तो अब लॉजिकली सोचिए, साइन कब होता है हाफ के इक्वल, पाई बाय 2 and पाई बाय 4 बता रहे हो आप. ओके, चलो
पाई बाय 6 30 डिग्री पे होता है और पाई बाय 2, और मेरे पास 0 से पाई बाय 2 कहा गया था, तो बोथ आर माय रिक्वायर्ड आंसर्स. So corrected भानु, it's not pi by 4, it is pi by 6. दूसरा ठीक है. दो आंसर आ रहे हैं. Yes, ठीक है. Okay भूमिका. Okay भानु. Check out this question. सिंपल 3/3 डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करना है. What is x? सो यूजुअल मेथड से मैं फर्स्ट रो से एक्सपैंड कर देता हूं. x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, देन सेकेंड वाले का साइन चेंज होके आता है, तो माइनस साइन थीटा, कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड करा, माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. और फिर उसके बाद प्लस लास्ट कॉस थीटा लिया, ये वाला, कॉरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को हाइड करा, माइनस साइन थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स कॉस थीटा हो जाएगा, एंड दिस इज गिवन एज 8. बस यूजुअल मेथड से एक्सपेंड कर दो. माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस एक्स कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज 8. ये कैंसल, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स और ये दोनों मिलकर सिंपली एक्स हो जाएगा, और एक्स क्यूब आपके पास आ गया -8. सिंपली दिस गिव्स अस x is equal to -2. Your required answer. भानु चेक करो, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक रही होगी. So the answer is -2. Right, Bhumika. And here comes the last question. Find the maximum value of this determinant. So it's in your homework. Direct expand करिए and then think about ट्रिग्नोमेट्री. और आपको हिंट दे देता हूं, साइन थीटा हमेशा -1 से 1 के बीच में होता है. सेम केस फॉर कॉस ऑल्सो, बट इसका यहां यूज आएगा. So complete this in your homework. I'll share the assignment also. Very simple type of direct questions are there. Please do complete that. और चैप्टर 3 की भी जो मैंने हॉट्स की या मिसलेनियस असाइनमेंट डाली हैं, प्लीज उन्हें भी आप साथ साथ अटेम्प्ट करते रहिए. That's all for today. You can leave the class now. Thank you.